Hello students, myself Bafna ma'am. Now today this is the first class of International Economics semester 6 and this is the book I am referring is Dr. Shri Shri S.R. Javale, Dr. Shri Shri D.B. Shinde, Dr. D.G. Ushir and Dr. Shri Shri N.B. Vakchore. So this is the book I am referring. This is a new syllabus semester 6. Okay, today we will be starting the chapter balance of payment. So this is the first chapter we will be I'll be dealing with this balance of payment, and today I will be taking the class of concept of balance of trade and balance of payment. What is the concept of balance of trade and balance of payment? What do you mean by balance of trade, balance of payment, and features of balance of payment? Okay, now so the object is here to create awareness about the concept of balance of payment and balance of trade. Okay, here we will see, next we will see what is this balance of payment. So see, in the introduction part it has been told that an important tool to describe the monetary status of international trade is balance sheet. In foreign trade, one country imports some goods to another country. Some goods are exported to other countries. In this trade, countries' imports can be sometimes low and sometimes high. In addition to imports and exports of the goods, some other factors create trade with foreign countries. And two types of concepts are used when presenting a balance sheet of all these matters together. One is balance of trade and other is balance of payment. Okay, यहाँ पे ये बोला गया है. So एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक मॉनेटरी स्टेटस इंटरनेशनल ट्रेड का जो डिस्क्राइब किया है वो बैलेंस शीट के द्वारा ही मालूम पड़ता है कि इंपोर्ट कितना हुआ है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है. इस बैलेंस शीट से ही मालूम पड़ता है. नहीं तो कितना कब मालूम पड़ेगा कि हमारा जो कंट्री का ट्रेडिंग जो हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है या कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है या कम है. सो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैलेंस शीट से ही मालूम पड़ता है कि पेमेंट कितना बैलेंस है करके. Okay, so this is the introduction part. We will see the concept of balance of trade and balance of payment here. Now we will see what is the concept of balance of trade and balance of payment. What do you mean by balance of trade? In balance of trade, only currency transactions are generated from import and export of goods. Okay, only currency transactions are imported. Okay, you see here only currency transactions are generated. Okay, we import goods from another country, you have to pay the price of that imported goods. In balance of trade, imports are on one side and export are on other side, because if you export to other countries, you get income from another country. When you import goods from another country, it will become your expenditure. Therefore, in balance of trade, export or income come to the front, come to the fore, yani it comes to the front. Okay, so this is the front here. So this is balance of trade. It is when यहाँ पे क्या बोला है, currency transactions are generated. Currency transaction एक generate हुआ है import and export of goods. Okay, import goods का क्या होता है, we import goods from one country to another country. आपको प्राइस देना पड़ता है. एक्सपोर्ट में आप इनकम अर्न कर रहे हैं और इम्पोर्ट का जो गुड्स यानी इम्पोर्टेड आइटम्स आप जो खरीदते हैं उसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है. Okay, so this is balance of trade. Now we will see what are the types of balance of trade. Imports and exports are not necessarily equal in value. Import and export are not necessarily equal in value. There may be inequality between them. ओके, यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या बोला है, नेसेसरीली इक्वल इन वैल्यू नहीं हो सकता है. जितना आपने इम्पोर्ट किया उतना ही एक्सपोर्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. सो देर इज नॉट नेसेसरीली इनइक्वल है, इनइक्वल इन वैल्यू, देर इज इनइक्वालिटी बिटवीन देम. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. फर्स्ट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. यहाँ पे देख सकते हैं. फर्स्ट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? सी व्हेन ए कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स exceeds its import,
the income from another country in the form of money comes to our country, okay, is more than the expenditure of our country on imports from other countries. Therefore such a balance of trade is called a favorable balance of trade. अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से भी तो उसको क्या कहेंगे, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है आपका, फेवरेबल है। अभी अनफेवरेबल किसको बोलेंगे? See, when the total import of the country's good exceeds its export, the debt owed by the country to a foreign country is more than the income. Okay, such a balance of trade situation is called unfavorable balance of trade. अगर आपका इंपोर्ट एक्सीड हो रहा है एक्सपोर्ट से ज़्यादा, आपका इंपोर्ट यानी जो फॉरेन कंट्री से जो माल आता है वो बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो आपका डेट है दूसरे कंट्री के ऊपर, यू आर ओविंग ए डेट टू द अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री, सो आप क्या बोलेंगे, इस बैलेंस ऑफ ट्रेड को अनफेवरेबल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका यहाँ पे अनफेवरेबल है। Okay, so in a nutshell, trade gives a holistic view of what is given and what is generated in case of goods exported from the country and imported from the abroad. ओके एक व्यू दिखाता है आपको कि आपने क्या जनरेटेड किया है, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम द अब्रॉड। सो एक व्यू है, एक जस्ट फोकस ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। The balance of trade is the balance sheet of transaction made from the import and export of merchandise. Balance of trade क्या है? एक बैलेंस शीट दिखाता है ट्रांजैक्शन आपका कितना है, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो अनफेवरेबल बैलेंस किसको बोलेंगे? अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो उसको अनफेवरेबल बोलेंगे। ओके, नाउ वी विल सी बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? Money exchange between one country and another country is not just a matter of importing and exporting goods. There are number of factors that cause one country to owe something to another country and at the same time generate some income from another. Okay, यहाँ पे number of factors that cause one country to owe something, एक country से दूसरे country बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री से अपन माल लेते हैं देते हैं, तो एट द सेम टाइम इट जनरेट सम इनकम फ्रॉम अनदर, या तो अपने कंट्री में इनकम ज़्यादा जनरेट होगा या दूसरी कंट्री में इनकम ज़्यादा होगा। तो एक नंबर ऑफ फैक्टर है, सिर्फ ट्रेडिंग का मैटर नहीं बनता है, बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। ट्रेड मैटर्स और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर कॉल्ड विजुअल मैटर्स। अभी यहाँ पे ये बोला है ट्रेड जो करते हैं, ट्रेड मैटर्स और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर कॉल्ड विजुअल मैटर्स। विजुअल मैटर्स जो आंखों से देखते हैं उसको विजुअल मैटर्स बोलते हैं। सो दीज मैटर्स आर रिपोर्टेड टू द कस्टम्स ऑफिशियल्स एट द पोर्ट। एट द पोर्ट यानी एयरपोर्ट है। सो दीज मैटर्स आर रिपोर्टेड टू द कस्टम्स। जो इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है ये कहाँ पे रिपोर्ट होता है? कस्टम्स ऑफिशियल्स एट द पोर्ट, एयरपोर्ट पे रिपोर्ट होता है। दिस मीन्स दैट यू कैन सी द एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी आइटम्स वेयर एक्सपोर्टेड। यानी जब पोर्ट से कोई भी चीज़ें जाती है तो एक रिकॉर्डिंग होती है कि भाई कितने आइटम्स यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है फ्रॉम योर कंट्री टू फॉरेन कंट्रीज। ओके, हाउ मेनी आइटम्स वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्रीज। सो यहाँ पे एयरपोर्ट से ही मालूम होता है कि कितना आइटम्स इधर से फॉरेन कंट्री गया, फॉरेन कंट्री से कितना आइटम यहाँ पे आया है करके इंपोर्ट होके। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड विजुअल थिंग्स। ये आंखों देखी है, इसको विजुअल थिंग्स कहेंगे। इनविजिबल मैटर्स आर नॉट रिपोर्ट टू द कस्टम ऑफिशियल्स एट द पोर्ट। ओके, इनविजिबल मैटर, इनविजिबल जो दिखाई ही नहीं देता है, दीज आर नॉट रिपोर्टेड टू द कस्टम ऑफिशियल्स एट द पोर्ट। But in the case of a country, giving and taking is created. For example, transportation, banking and insurance, tourism, etc. Giving and taking is created. एक गिविंग एंड टेकिंग एक क्रिएट तो हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा। सपोज ए बैंक इन योर कंट्री प्रोवाइड्स अ सर्विस टू a foreign country, then the foreigners will pay some amount to the bank in your country.
अगर आपने कुछ सर्विस फॉरेन कंट्री को दिया है तो सर्विस का चार्ज तो आप लगाएंगे ही ना, तो उसको पेमेंट मिलता है अपने कंट्री को. सो इट विल बी द इनकम ऑफ अवर कंट्री. ओवरऑल द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो ओवरऑल जितना पेमेंट है, बैलेंस पेमेंट कंट्री का है, दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. ओके, सर्विस है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, तो सबको एज अ होल इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. एक साइड है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक स्टेटमेंट दिखाई देगा आपको कि इनकम आ रही है अब्रॉड से. एंड अदर साइड देर इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीज डेट साइड. जैसे आप अकाउंट्स में देखते हैं, एक साइड इनकम है, एक साइड डेट्स है, तो उसी तरह एक साइड इनकम का जो है वो है कंट्रीज़ की इनकम कितनी हुई है, और कंट्रीज़ का डेट अदर साइड है, तो वो आपको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में. सो द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ दिस आर कलेक्टिवली कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हुआ है उसको कलेक्टिवली हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो द बैलेंस शीट इज द समरी ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ओके, सो एक बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है कि कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हुआ है. अभी बहुत सारे इकोनॉमिक्स है जिन्होंने डिफाइन किया है. यहाँ पे मेजर डेफिनेशंस यहाँ पे देखते हैं. Balance of payment is a summary statement of all transactions between the residents of one country and the rest of the world. It covers a given period of time, usually a year. And second, यहाँ पे वॉल्टर क्रूएस ने क्या कहा है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस completed between its residents and residents of the rest of the world during a given period of time, usually a year. हाँ, यहाँ पे नीट एंड क्लीन से मालूम हो रहा है, बहुत सिंपल से बोला है. बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे इन्होंने बोला है डेल्बर्ट ए सिंडर, इन्होंने क्या बोला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मे बी डिफाइंड एज अ समरी ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सचेंजेस एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विसेज, एविडेंस ऑफ डेट्स और ओनरशिप अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड बिटवीन द रेसिडेंट्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो दीज आर द सम ऑफ द ऑथर्स डेफिनेशन. इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये फीचर्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? द सेलेंट फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर एज फॉलोअर्स. सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कंट्रीज ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज. बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे आपने अकाउंट्स में देखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक व्यू है कंट्रीज का ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज. उससे मालूम पड़ता है, ओवरव्यू आप देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ता है. जैसे अकाउंट्स में आप देखते हैं किसी की कंपनी के बारे में कि भाई उसका डेट कितना है, इनकम कितनी है, एक व्यू देखते हैं. उसी तरह एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ शीट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें मालूम पड़ता है कि कंट्री का ट्रेड फॉरेन कंट्रीज के साथ कितना हो रहा है करके एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू है. One country has many transactions with other countries. It is not possible to show it in all transactions. So therefore there are briefly mentioned in the balance of payment. Numerous commercial transactions are recorded by classifying them into a few small groups. Okay? So एक कंट्री का बहुत सारे कंट्रियों के साथ ट्रांजैक्शंस होता है, तो ये सब ट्रांजैक्शन इसमें नहीं दिख सकता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो इट ऑल इन द ट्रांजैक्शंस. ये पॉसिबल नहीं है कि सब ट्रांजैक्शंस दिखाए, लेकिन एक ब्रीफली मेंशन्ड हुआ रहता है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि भाई कितना ट्रांजैक्शंस हुआ है अपनी कंट्री का दूसरे फॉरेन कंट्री के साथ, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितना, कौन सी कंट्री के साथ कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसे मालूम पड़ेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट से. So numerous commercial transactions are recorded by classifying them in a few small groups बनाया हुआ है. तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया गया है और उसको क्लासिफाई किया गया है एक स्मॉल ग्रुप्स में. ओके, सो दिस the balance of sheet is a record of all international transactions, goods, services and other assets are exchanged between the people in the country
एंड पीपल इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो एक बैलेंस शीट है, ए रिकॉर्ड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड है. ओके, गुड्स है, सर्विसेज का, अदर एसेट्स है, आपने क्या एक्सचेंज किया बिटवीन द पीपल इन द कंट्री एंड बिटवीन द पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी अपने कंट्री के लोगों के साथ आपने क्या इंटरेक्शन किया है, ट्रांजैक्शंस का क्या डीलिंग किया है, और अदर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आपने ट्रांजैक्शन किया है. तो दैट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डन through donations, payment of services. They are all included in the balance of payment. सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का नहीं, आपने क्या डोनेट किया है, क्या सर्विसेज दिए है, उसके लिए क्या पेमेंट लिया है, तो सब ये इंक्लूड हुआ है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड हुआ है. ओके, सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, डेट्स एंड रिसीवेबल्स. यानी जो आपको रिसीव करना है उसको इनकम कहेंगे, और डेट्स आपको जो देना है उसको डेट्स कहेंगे. सो ऑल द थिंग्स दैट ब्रिंग्स इनकम टू आवर कंट्री फ्रॉम अब्रॉड कम असाइड. एक साइड में आता है, अपनी कंट्री को जो इनकम मिलता है एक साइड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस शीट में आपने देखा होगा जो आना है एक साइड में रहेगा. सो ऑल द थिंग्स दैट कॉज ए कंट्री टू गिव टू अनदर कंट्री फ्रॉम अ साइड. ओके, तो जिसको देना है वो अलग कैटेगरी में आएगा, जिसने हमको देना है यानी रिसीवेबल्स है वो अलग कैटेगरी में आएगा. ओके, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, income in the form of donation and inflow of capital into our country are indicated by plus sign. Okay, जो आ रहा है यानी in the form of donation, inflow of capital of our country, जो इनफ्लो हो रहा है, जो डोनेशन आ रहा है, जो इनकम गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स की आ रही है, तो वो उसको प्लस साइन बोलेंगे. डेट्स आर डोनेटेड बाय नेगेटिव साइन. ओके, जो डोनेट किया गया है उसको नेगेटिव साइन में दिया गया है. इम्पोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, डोनेशन मेड टू फॉरेनर्स, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल्स और ऑल सेट असाइड. इसको जो दिया गया है यानी सिंपल भाषा में कहेंगे जो दूसरों को देना है, दूसरी कंट्री को देना है, उसको माइनस साइन कहेंगे, और जो आ रहा है उसको प्लस साइन कहेंगे. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री आर रिकॉर्डेड इन ए डबल एंट्री बुक कीपिंग. ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग आपको मालूम ही है, तो उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री. दिस मीन्स दैट एवरी इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस. तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुआ है इंटरनेशनल का, वो रिकॉर्ड कितनी बार हुआ है, ट्वाइस. एक ही बार रिकॉर्ड नहीं होता है, ट्वाइस होता है रिकॉर्डिंग. Okay, now next we will see what is balance of payment on current account and capital account. जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उसी प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है देखते हैं. The records of all financial transactions that take place in international trade fall within the balance of payment. Okay, the balance of payment is divided into two parts. One is current account balance and other is capital account balance. यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक तो करंट अकाउंट बैलेंस में और कैपिटल अकाउंट बैलेंस में. देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रियल ट्रांजैक्शंस and financial transactions. For example, import export. Export generates income and the people of the country buy goods and services from the foreigners. Export generates income and the people of the country buy goods and service from foreigners. Okay, real transaction and financial transactions, उसका भी एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इट जनरेट्स इनकम फ्रॉम पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, सो द रियल ट्रांजैक्शंस आर इनकम जनरेटिंग. रियल ट्रांजैक्शंस क्या है, इनकम जनरेट करता है. एक्सपोर्ट करेंगे आप फॉरेन कंट्रीज को तो क्या होगा, इनकम होगी, तो वो रियल ट्रांजैक्शन में आएगा. इन कॉन्ट्रास्ट उसके ऑपोजिट क्या है, ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ मनी और करेंसी फॉल इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. मनी है या करेंसी है, उसको क्या बोलेंगे, मनी या करेंसी, तो वो किस में आएगा,
Which category it is going to fall? Financial transaction. Financial transactions are often referred to as capital transaction. उसको क्या रेफर करेंगे? उसको capital transaction रिकॉर्ड करेंगे, उसको रेफर करेंगे. ओके, so these transactions do not directly affect country's income level. इसको डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं होगा कंट्रीज इनकम लेवल के लिए, बट इन दीज ट्रांजेक्शन ओनली कैपिटल एंड कैपिटल एसेट्स एज वेल एज द लायबिलिटीज ऑफ द कंट्रीज चेंज. इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा? कैपिटल एंड कैपिटल एसेट्स एज वेल एज द लायबिलिटी ऑफ द कंट्री चेंज होगा. कैपिटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंट्री की चेंज हो जाती है. ओके, सो इनकम जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस, सो इनकम जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस और रियल ट्रांजैक्शंस, उसको मैंने कहा था ना, रियल इनकम किसको बोलेंगे? इनकम जनरेट होता है उसको रियल ट्रांजैक्शंस बोलेंगे. सो इनकम जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस और रियल ट्रांजैक्शंस कम इनटू करंट अकाउंट. रियल ट्रांजैक्शंस किस में आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो फाइनेंशियल और कैपिटल ट्रांजैक्शंस कम इनटू कैपिटल अकाउंट. ओके, रियल ट्रांजैक्शन किस में आएगा? करंट अकाउंट में आएगा, और कैपिटल ट्रांजैक्शन किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा. ओके, सो कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. एक फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बहुत यूजफुल होगा. ओके, द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैव टू बी लॉक्ड at to see how countries' international trade affects income and employment level. करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन से क्या होता है? टू सी हाउ कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल. कि कंट्री की इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट कैसे हो रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल से, वो करंट अकाउंट से ही मालूम पड़ेगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से ही मालूम पड़ेगा कि इनकम जनरेट हो रही है या नहीं है, या इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है उसका करके. तो दैट इट विल बी सीन फ्रॉम करंट अकाउंट ओनली. Current account shows how much foreigners spend on domestic goods and how much we spend on foreign goods. करंट अकाउंट से ही मालूम पड़ेगा कि फॉरेनर्स जो अपने कंट्री का गुड्स खरीद रहे हैं तो कितना खरीद रहे हैं, कितना उसके ऊपर व्यय कर रहे हैं, यानी कितना खर्चा कर रहे हैं, और अपनी कंट्री कितना फॉरेन गुड्स के ऊपर खर्चा कर रही है. So from this it is possible to estimate the level of income and employment of country. तो इससे मालूम पड़ता है कि अपना इनकम कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, कंट्री का एम्प्लॉयमेंट कैसा है, एज वेल एज द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेनर्स. Similarly, the transaction reflects the effect of capital account trade and debt of the country's wealth and debt. सो ये ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट क्या करता है, क्या दिखाता है कि इफेक्ट क्या है कैपिटल अकाउंट का, ट्रेड कितना हो रहा है, डेट्स कितना है, कंट्रीज़ का वेल्थ कितना है, डेट कितना है, यानी कंट्रीज़ का वेल्थ कितनी है, या फिर उसको क्या बोलेंगे, डेट्स को, यानी उधारी कितनी है. ओके, सो इसमें मालूम पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. नाउ वी विल सी व्हाट इज करंट अकाउंट. Here we can see here there are two types of current account, visual thing और visual account, invisible और invisible account. यहाँ पे two types of current account बोला है, visible, invisible and visible. अभी visible thing और visual account में क्या है? Visual account includes import and export of goods. Invisible account includes payment for services और डोनेशन, कि आपने सर्विस क्या दिया है, डोनेशन कितना दिया है. दैट इज द ट्रांसफर इन्वॉल्व्स दिस अकाउंट. यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है दैट वो इन्वॉल्व होता है इस अकाउंट में. इसको विजुअल अकाउंट बोलेंगे, यानी जो आंखों से दिखाई दे रहा है. विजुअल अकाउंट. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैंने पहले भी बोला है, जो पोर्ट में विजुअल दिखता है, यानी पोर्ट में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ. इनविजिबल अकाउंट आपको पेमेंट, सर्विसेज, डोनेशंस, ये इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता है. सो जनरली इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंश्योरेंस, लोन, टूरिस्ट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड डोनेशंस आर इंक्लूडेड इन विजुअल मैटर्स. ये विजुअल मैटर्स है. ओके, सो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे IMF, हैज़ इंक्लूडेड द फॉलोइंग इन द इनविजिबल अकाउंट। सो इन्होंने IMF ने इंक्लूड किया इनविजिबल अकाउंट में, क्या आएगा, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग स्टोरेज कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इनविजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट्स में आएगा, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, स्टोरेज होता है, स्टोरेज कॉस्ट होता है, अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशंस, और दूसरे कुछ इनका एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसमें जो जो एक्सपेंसेस हुआ है इट कम्स अंडर इनविजिबल अकाउंट। ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, इंटरनेशनल सेरेमनीज एक्सेट्रा। ओके, सेकेंड है इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड क्लेम्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट सेगमेंट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, एडवर्टाइजिंग, ब्रोकरेज, मूवी रेंटल, पेंशन, पेटेंट, फीस, रॉयल्टीज एंड मैगजीन सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब किस में आएगा, इनविजिबल अकाउंट में आएगा। ओके, सो वी विल सी वन ए कंप्लीट आइडिया ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एक टेबल दिया गया है जो ये यहाँ पे दिखाता है कि भाई किसको करंट अकाउंट बोलेंगे और किसको कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। सो वी विल सी हियर ट्रेड ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, उसमें क्या आएगा, सर्विसेज। फर्स्ट है ट्रेड ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ओके, ये करंट अकाउंट है। सेकेंड क्या आएगा, सर्विसेज, उसमें आएगा ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मूवी रेंटल, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। ये एक स्ट्रक्चर दिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये करंट अकाउंट में आएगा। और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, लोन्स आएगा, प्राइवेट लोन्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक डेट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स, सेटलमेंट अकाउंट्स, एरर्स एंड ओमिशंस, ये आएगा कैपिटल अकाउंट्स में। Okay, so we will see what is no capital account. Loans and other claims come into the capital account. Okay, loans and claims come into the capital account. The capital account covers the supply of capital for imports and export as well as the supply of capital from international financial institution. Capital account क्या cover up करता है, supply of capital for imports and export as well as the supply of capital from international financial institution. Accordingly, there are various accounts in the capital account such as private capital account, international institution capital account and government capital account. ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के capital account है। International capital transactions of corporations and commercial banks in private capital account can be short term and long term. ये जो है, ये जो capital account है, ये short term का भी हो सकता है, long term का भी हो सकता है। Okay, transaction in international capital accounts, World Bank, International Finance Corporation. Short-term and long-term capital transactions by organization such as the International Development Association, the Bank for International Settlement. ये कैपिटल अकाउंट, इसको कहा गया है कैपिटल अकाउंट। से बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस। कभी भी ऐसा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि बैलेंस नहीं है, दोनों साइड में देखेंगे तो बैलेंस ही मिलेगा, बैलेंस इक्वल होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंट्री इज क्रिएटेड बाय डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कोई भी कंट्री होने दो, वो कैसे क्रिएट होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में होता है। सो एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द बैलेंस शीट इज दैट बोथ इट्स साइड्स, क्रेडिट साइड्स एंड द एक्सपेंसेस साइड्स आर ऑलवेज द सेम। आप बैलेंस शीट देख सकते हैं अकाउंट्स में, बोथ द साइड में, क्रेडिट साइड में हो या एक्सपेंसेस साइड में, सेम ही आएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। द रीजन फॉर दिस इज दैट एवरी मैटर्स कम्स एंड गोज, सब आएगा और जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बोथ द गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द कंट्री लुक द सेम। जो देना है लेना है कंट्री का सेम ही रहेगा। सो इट इज स्टेटेड दैट देयर इज ऑलवेज ए बैलेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या बोल, बैलेंस शीट में क्या है, देयर इज ऑलवेज बैलेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन में हर बार बैलेंस ही दिखाई देगा। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अभी ये दिमाग में आएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना क्यों है, हर बार वो बैलेंस ही दिखाता है तो उसमें इतना घुसने की क्या जरूरत है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है अपन देखते हैं अभी।
So, a careful study of countries' balance of payments can lead to an analysis of country's economic situation. So, एक कंट्री के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उससे एक पूरा एनालिसिस मिल जाता है कि कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे चल रही है अभी करके. तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही, केयरफुल स्टडी से ही मालूम पड़ेगा. So based on this, the importance of balance of payment can be explained as follows. Say, understand how much money our country gets from foreign countries and how much money we give to foreigners. It is understood from balance of payment. Understanding the balance of payment of developing countries, it shows that how much they depend on foreign capital for economic development. बैलेंस ऑफ पेमेंट से मालूम पड़ता है कि डेवलपिंग कंट्रीज कितना निर्भर है कैपिटल, फॉरेन कैपिटल के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फॉरेन कैपिटल कितनी चाहिए, कितना डिपेंडेंट है. सिमिलरली द बैलेंस शीट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज शोज हाउ मच दे अर्न फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो बैलेंस शीट से ये भी मालूम पड़ता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने कितना कमाया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनों ने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने कितना अर्न किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से. सो इन प्रैक्टिस दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. ये एक मेजर होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही मालूम पड़ता है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो कंट्री की है मेजर कर सकते हैं. ओके, सो this is because by comparing the past and present state of balance sheet, conclusion can be drawn about what is changing in the economic situation of the country. एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, क्या क्या चेंजेस हुआ है. Okay, so by studying different parts of balance of country, a country can estimate its economic condition. In general, when balance of payment is unfavorable, the economic condition of the country is worrying. अगर आपका balance of payment unfavorable है, यानी import आपका ज़्यादा है export से, तो वो unfavorable है country के लिए और वो एक worrying है, एक चिंताजनक विषय है. ऑन अदर हैंड इट इंडिकेट्स दैट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज सेटिस्फैक्ट्री इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मोर फेवरेबल. अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है. सी फ्रॉम ए ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांजैक्शन पॉइंट से अपने को मालूम पड़ता है इट इज़ ईजी फॉर द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिगार्डिंग. ट्रांजैक्शन से ही मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है रिगार्डिंग मॉनेटरी, फिस्कल यानी राजकोषीय, फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार, एंड फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा नियंत्रण, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल यानी अगर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो डॉलर को अपने देश में खरीद के लाना है या नहीं लाना है, तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल से ही मालूम पड़ता है, इस व्यू से ही मालूम पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही मालूम पड़ता है. सो दिस इज अ मेन इम्पॉर्टेंट tool here. It has been told here. It is understood that a country is playing the role of importing goods by exporting goods, raising loans, or accepting donations from foreigners. The idea that country borrows or supplies as well as the country's currency and foreign exchange reserves are becoming stronger or weaker comes from the balance of payment. एक आइडिया मिलता है कंट्री को कि बोरो करना है, सप्लाई करना है, कंट्रीज करेंसी कितनी है, वैल्यूएशन उसकी करेंसी यानी कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, तो किससे मालूम पड़ेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही मालूम पड़ेगा. बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है तो उससे ही मालूम पड़ेगा. The external value of country's currency or the value of foreign currency is increasing or decreasing. The idea also comes from balance of payment कि भाई आपकी कंट्री की करेंसी कंट्रीज करेंसी जो है और फॉरेन की करेंसी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी आपका जो रुपीज़ की जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, यानी डॉलर का वैल्यू ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
तो किससे मालूम पड़ेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट से. इट कैन ऑल्सो बी मॉनिटर्ड ड्यू टू द करेंसी डिवैल्यूएशन. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्रेडिक्ट वेदर द डिवैल्यूएशन विल effectively increase export. Okay, so next we will see causes of disequilibrium in the balance of payment. A importance of balance of payment, उससे ही मालूम पड़ता है कि भाई आपकी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन यानी स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, ग्रो हो रही है या डिक्लाइन हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही मालूम पड़ेगा. Okay, so we will in the next chapter we are going to take causes of disequilibrium in balance of payment. Next video we will be taking causes of disequilibrium in balance of payment. What do you mean by disequilibrium? We will see in the next video.